देख रहे हो कोड को, मतलब क्वेश्चन को सब देखे तुम लोग? और रिस्पॉन्स करो कुछ, यस नो, कुछ तो रिस्पॉन्स करो। साइलेंट में क्यों हो इतना? अर्णव, सायन नंदी, प्रतीक प्रधान, शिवदास। यस सर। क्या ये सर कब से हम बोल रहे हैं क्या क्या हुआ है क्लास में, कितना दूर हुआ है, कितना बार पूछेंगे तुम लोगों से? गजब है सब। संदीप चौधरी, संदीप चौधरी, देखो चैट में हम एक क्वेश्चन दिए, चैट में हम एक क्वेश्चन दिए, इस क्वेश्चन का सॉल्व निकालो। Write a program to print the area and the perimeter of the triangle having sides 3, 4 and 5 unit by creating the class name triangle without any parameter in its constructor. क्वेश्चन में किसी का डाउट्स है? क्वेश्चन में किसी का डाउट्स है? सौमिता, ইয়েস স্যার। বুঝতে পেরেছিস কোশ্চেনটা? হ্যাঁ স্যার, কনস্ট্রাক্টর ছাড়া করতে হবে। তাই বলেছে, স্যার আমি দেখছি। উইদাউট এনি প্যারামিটার ইন ইটস কনস্ট্রাক্টর, বিকজ এখানে তোর ভ্যালুটা বলে দিয়েছে, হার্ড কোডেড ভ্যালুটা বলে দিয়েছে 3, 4 and 5 units by creating a class named triangle without any parameter in its constructor. তুই থিওরি ক্লাসে ছিলিস তুই আজকে বা কালকে? হ্যাঁ স্যার, আজকে ছিলাম। কি কি পড়িয়েছে, মানে কি হয়েছে থিওরি ক্লাসে? লাস্ট কি টপিক হয়েছে? ম্যাম তো কনস্ট্রাক্টর পড়াচ্ছিলেন, কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং এগুলো পড়াচ্ছেন। তুই লাস্ট ক্লাসে আমার ল্যাবে ছিলিস? তুই লাস্ট ল্যাবে? না স্যার, আগের দিন আমি জয়েন করিনি। ওকে, ঠিক আছে, তো এই প্রোগ্রামটা স্টাर्ट कर। नेहा कुमारी, यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। कर पाओगे? तो ट्राई कर रहे हो। करो, जल्दी करो। गौतम राज, सर कर रहे हैं। ओके जल्दी करो, ठीक है करो। सदफ यास्मीन, मृणाल, सज्जन, यस सर। प्रॉब्लम को समझ में आया कि जो क्वेश्चन हम दिए? कर रहे हैं सर अभी। ठीक है करो। অনয়, করছিস অনয়? ओके ओके, सोनी कुमारी, गार्गी,
হ্যাঁ স্যার, করছিস? হ্যাঁ স্যার দেখছি কোশ্চেনটা। সোহম দাস, Yes, sir. কোশ্চেনটা পড়েছিস? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। করতে পারবি? ট্রাই কর। নিকিতা केतन कुमार यस सर। क्वेश्चन देखे? यस सर। कर पाओगे? हाँ सर, ट्राई कर लेंगे। ठीक है, करो। जिसका हो जाएगा चैट में अपलोड कर देना। अपलोड करो, हम देखेंगे। सत्यम, तुम भी करो। माइक क्या हुआ तुम्हारा? सत्यम और ये इसका सोहेल का चैट में लिख रहे हो।
गौतम हुआ कंप्लीट? नहीं सर, ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, दो। जिसका हो गया है सबमिट कर देना, चैट में सबमिट करो। यस। ये क्या है पैकेज? तुम क्या आईडी से कर रहे हो? S1 S2 S3 ठीक है। टेस्ट डिफॉल्ट है, इसका वैल्यू तुम फिक्स कर दिए, एरिया किए। और पेरिम एरिया में क्या होता है, फॉर्मूला क्या है? अच्छा, ओके। एस निकाले, एस के साथ ठीक है एकदम। पेरीमीटर दोनों तीनों प्लस हो गया, 100 में 100 किए, 100 में 100 किए। देखते हुए एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। ठीक है, आउटपुट कितना आया? 12.6। पेरीमीटर कितना है? 6। और एरिया 6 है। हाँ, হ্যাঁ, তো এটাতে তোর কি আসছে? এটাতে তোর 6 আসছে। কম আসছে না মনে হচ্ছে একটু? এই যে এখানে 3, এটা 3 না 2 হবে রে? 2 হবে। ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, ফর্মুলা যেটা লাগিয়েছিস সেই হিসাবে অ্যান্সারটা এসছে। ওকে, বাকিদের কি খবর? অনয়ের বাড়ি কোথায়? ব্যারাকপুর। ওকে, তুই কলেজে এসেছিলিস কখনো? না, ফিজিক্যালি ফিট। ওকে, বাকিরা কেউ দিবি কই?
কেউ কোডটা দিবি, আউটপুট কেউ করতে পারছিস? তোদের রেসপন্স খুব কম। गौतम राज बोले हो गया, कहाँ कहाँ दिए तुम? शिवदास, शिवदास বলুন স্যার। কি বলবো, জিজ্ঞাসা করবো তুই কেমন আছিস? না স্যার, করছি স্যার, হ্যাঁ, ছবিটা তো হেভি করছি স্যার। লাগিয়েছিস। করছি স্যার। কোথায় ছিলিস তুই? আয়লার সময় দাঁড়িয়ে ছিলিস নাকি আয়লার সামনে, না জসের না সামনে দাঁড়িয়ে স্যার, ছিলিস? পুরীতে স্যার। একটু কোডিং টোডিংও প্র্যাকটিস কর, করছি তো স্যার। এগুলোই পেটের ভাত দিবে। করছি স্যার করছি হ্যাঁ স্যার স্যার। করতে করতে আধ ঘন্টা কাটিয়ে দিলি, আর বাকি 15 মিনিট কাটানোর পরে হয়ে গেছে স্যার। তোর কি খবর রে? কোথায় গেলি সৌমিতা? একটা 12-15 লাইনে কোড লিখতে তোদের এত সময় লাগছে? সৌমিতা, তোদের হ্যাঁ ব্যাপারটা স্যার। হচ্ছে আইদার তোরা কনসেপ্টটা বুঝছিস না, বা কোনো কনসেপ্টই তোদের হচ্ছে না, নাইদার তোরা ইন্টেনশনালি কিছু করছিস না। আর কিছু জন তো আছিস অলরেডি মোবাইল অন করে রেখে দিস, অনলাইন ক্লাস মোবাইল অন করে বাস ঘুমিয়ে গেলি বা যাই হোক অন্য কোনো কাজ করছিস। সো এতে কারোর কিছু হচ্ছে না, তোদেরই বেসিক্যালি ক্ষতি হচ্ছে। হ্যাঁ কি বললি বল সৌমিতা? না স্যার, আমি বুঝতে পারিনি, আমি আগের ক্লাসে ছিলাম না তো, তাই আমি বুঝতেই পারিনি, তাই আমি চেষ্টা করছি করার। তো সেটা তুই একবার বল, আমি তো এতক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসা করছি যে কারো কোনো কোশ্চেনের প্রবলেম থাকলে সেটা বল, সেটা আমি সলভ করছি বা এক্সপ্লেন করব। সিলেবাস কমপ্লিট করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমি তোদের যে সিলেবাস আছে সেটা শেষ করতে আমার বেশি দিন লাগবে না, বা ম্যামেরও বেশি দিন লাগবে না। তোরা কতটা বুঝতে পারলি সেটা হচ্ছে ব্যাপার। ডিফারেন্সটা দেখ, অনয় কিন্তু প্রোগ্রামটা চট করে দিল, ঠিক আছে? চট করে দিল মানে কি, ওই কনসেপ্টটা জানে বুঝতে পেরেছে তবেই না সে করতে পেরেছে। তো তোরা কেন বুঝতে পারছিস না, বা বুঝতে পেরে থাকলো কেন তাহলে করছিস না কেন? কোন জায়গাটা বুঝতে পারিসনি বল? স্যার আগের ক্লাস জাভাটাই নতুন তো, তো আমি ওই জন্য একটু ধরতে সব অসুবিধা হচ্ছে। সাবজেক্টই নতুন সমিতা, কোনো সাবজেক্টই তুই প্রথম থেকে পড়ে আসিসনি। হতে পারে কেউ 11-12 বা 9-10 হয়তো কারো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল, তার মানে এই নয় যে ও পুরোটাই জানে। ওর হয়তো লজিকটা ক্লিয়ার আছে, কিছু সিমিলার টাইপের প্রোগ্রামগুলো করে এসেছে বলে হয়তো লজিক ক্লিয়ার আছে, কিন্তু সেটা তোরও হবে। তুই এখনো ট্রাই করছিস না। তুই তো তোদের লাস্ট সেমিস্টারে সি ছিল, সরি লাস্ট না মানে সেকেন্ড সেমিস্টারে সি ছিল, তারপরে পাইথন, ডেটা স্ট্রাকচার, এইগুলো করে এসছিস। ফোর্থ সেমিস্টারে মনে কিছু ছিল না, না ফোর্থ সেমিস্টারে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল না মনে হয়, এই ফিফথ এবার জাভা আছে। না আগের সেমিস্টারে ছিল তো অ্যালগরিদম ছিল। অ্যালগরিদম ছিল স্যার। হ্যাঁ অ্যালগরিদম ছিল, আর একটা কি ছিল, দুটো সি দিয়ে, ও না অ্যালগরিদমই ছিল সি দিয়ে, হ্যাঁ। আর ওই সি দিয়ে মনে হয় স্যার ইয়ে করাচ্ছিল তো, গেট ফেট গুলো করাচ্ছিল। তো জাভাটা বুঝতে পারছি না, সেটা থিওরির যেখানে প্রবলেম হচ্ছে সেটা ম্যামকে বল, বা আমাকেও জিজ্ঞাসা কর, বা তুই ক্লাসে যখন ল্যাব ক্লাস হচ্ছে সেখানেও তুই জিজ্ঞাসা কর যে প্রোগ্রামগুলো কি করে হচ্ছে, বা জিজ্ঞাসা না করলে কি করে বুঝবো? দেখ আমি এই প্রোগ্রামটা এক্সপ্লেন করছি যেটা ও করেছে অনয়। বেসিক্যালি এই লাইনটা বাদ দিয়ে, এই লাইনটার কোনো মানে, ও যেহেতু একটা আইডি ইউজ করেছে তাই জন্য এটা এসছে। তো জাভা प्रोग्राम করতে গেলে कहाँ गया वो? गौतम तुम्हारा प्रोग्राम कहाँ है, दे दिए तुम? सर भेज दिए है। अच्छा भेजे हो। सौभिक पॉल, एक मिनट था, हम देखी। वेरी गुड। सर नीचे एक और भेजे है, उसमें सर पूरा कोड दिख रहा है। हाँ समझ गया, तुम्हारा लॉजिक सही है। सौभिक पाल, আমি যে প্রোগ্রামটা দিয়েছি সৌমিতা তোকে বলছি, যে প্রোগ্রামটা দিয়েছি সেই প্রোগ্রামটা তো রিলেটেড টু কনস্ট্রাক্টর। তো কনস্ট্রাক্টর ক্লাস তুই করিসনি ম্যামের? হ্যাঁ স্যার, আজকে করেছি।
তাহলে করেছিস, তাহলে বুঝতে পারছিস না কেন? মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে কি আছে, এখানে তোকে একটা ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া আর পেরিমিটার বের করতে হবে। সো ট্রায়াঙ্গেল ফার্স্টে তোকে ক্লাস বানাতে হবে। যে কোনো প্রোগ্রাম in Java, whatever you are doing, you have to code it under a class. So for that purpose you have to make a class. This is my class name. Under this is my instance variable. So to calculate a perimeter or area of a triangle, you have to declare 3 variable, side 1, side 2, side 3, or ABC, whatever XYZ যা কিছু তুই নিতে পারিস। Then build a constructor which is default. Why? কারণ কোশ্চেনে তোকে বলে দিয়েছে creating a class named triangle without any parameter in its constructor. কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে কোনো রকম প্যারামিটার পাস করবে না। So if a constructor doesn't take any parameter, that means that constructor name is default constructor. If it is take any argument, then this constructor is known as parameterized constructor. Basically there are two types of constructor. Okay, default and parameterized. মেথডেরও তাই হয়, ফাংশনেরও তাই হয়। This function is zero argument this function basically takes no argument. But if I write something int a comma int b, then this function takes 2 argument, both are integer type. Like this constructor also, it is a method. What is constructor? Constructor basically it is a method, but it is a special type method. Why special? Because see, the class name and constructor name must be same. Some important points are there. What points? First of all, every method has its return type. প্রত্যেকটা মেথডের তার রিটার্ন টাইপটা থাকবে, বাট except constructor has no return type, not even void. ठीक है? Why we declare this constructor? Why we declare this method? This constructor basically used for to initialize the instance variable. Instance variable গুলোর initialization করতে এটা হেল্প করে। It may be parameterized or it may be default. So in default में हम लोग क्या किए देखो, s1 equals to s2 equals to s3 equals to हम लोग value directly assign कर दिए as per my problem. আমার প্রবলেমে এরকম একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করা ছিল, বাট ইফ উই ওয়ান্ট টু অ্যাসাইন দিস ভ্যালু অ্যাজ এ প্যারামিটার, দেন we have to write parameterized constructor like int a comma int b comma int c. Then we have to write s1 equals to a, s2 equals to b, and s3 equals to c. বুঝতে পারছিস আমি যেটা বলছি? हेलो अनय सर। यस सर। ওকে, भाई তো আমি এখানে डेवलपमेंट কি पढ़ করলাম, रहे একটা थे, ये हरामी এটা साला मेरा একটা नाम ले लेके बार बार ডিফল্ট हमको কেন बुलाने বলছি, लगा। বিকজ নো আর্গুমেন্ট ইজ देयर। ओ तुमसे तो इम्प्रेस हो गया, हमसे हमसे क्या होगा? প্যারামিটার অর देयर इज सम आर्गुमेंट्स। এই আর্গুমেন্ট और এই প্যারামিটার গুলো কখন লাগবে? देखो, अरे तुमसे पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तुमसे मिलने तुम्हारे घर आएगा। সি কোথায় অবজেক্ট ক্রিয়েট করেছি? हाँ भाई, আন্ডার মেন। भाई সো মেনে যখন অবজেক্ট से ক্রিয়েশন बेसिक्स করছি, पढ़ অবজেক্ট रहे हैं। ক্রিয়েশনের সিনট্যাক্স কি? অবজেক্ট ক্রিয়েশনের সিনট্যাক্স হচ্ছে ক্লাস নেম, দেন ওবি ইজ দ্য অবজেক্ট নেম, अरे हम नेट पे equals ढूंढे तो to साला new हाइट is के the साथ मिल रहा operator है हम। by which we तो फिर- can हाँ create a memory of that object, हाँ of ठीक that particular object. New operators is used for create and अच्छा memory. सुनो ना, मेरे क्वेश्चन है कि ठीक है, यहाँ मेमोरी पे क्रिएट करा है ऑब्जेक्ट हम OB डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट मतलब जন্য। कंस्ट्रक्टर नहीं And देंगे, हम test डायरेक्ट open पैरामीटर close वाला braces, that कंस्ट्रक्टर means हाँ, this is वो a देखो constructor. सौमिता को वही बता रहा है, तुम देख लो। এটা কনস্ট্রাক্টর, ঠিক আছে। সো এখানে কোনো ভ্যালু পাস করিনি, দ্যাট মিন্স দিস हाँ, अब मेरे को কনস্ট্রাক্টর सर जो কল बोले देखो वैसे हमारा ही कोड किए। दिखा रहा है, मेरे को लगा default वही कॉपी constructor पेस्ट body, करना है, हम कॉपी पेस्ट and करके रन then कर दिए। for this OB भोसरी के वेरिएबल का it नेम will चेंज assign the करता वही value भाई 3, ये बेसिक्स 4 होता है कि and जब तुम 5.
for तुम S1 कॉपी S2 पेस्ट and करते हो S3 एटलीस्ट वेरिएबल नेम चेंज करके कॉपी पेस्ट करते हो। মানে अरे যখন मेरे অ্যাকচুয়ালি मेरे को এই लगा कि वही कॉपी पेस्ट करके रन करना है। अब वही रन करके भेज देना है ना। যখন অ্যাকচুয়ালি सर এরকম सर একটা तो তোর चुतिया बैठे। অবজেক্টটা क्रिएट হচ্ছে দেন when we ঠিক আছে একটা हाँ वही অবজেক্ট ক্রিয়েট बोलते হলো भाई, मेरे को लगा এই वही ক্লাসের कॉपी মধ্যে যে पेस्ट करना है। ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল আছে কটা ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল আছে তিনটে সো अरे मैं माइक ওবির खोल के জন্য बोल दे তিনটে रहा। এরকম अरे করে सर তোর ये तो मेरा ইনস্ট্যান্স ही पूरा ভেরিয়েবলের प्रोग्राम है। মেমরি ক্রিয়েট হবে S1 S2 and S3 মেমরি ক্রিয়েট হলো কত বাইট হাউ মেনি বাইট ইন্টিজারের জন্য কত বাইট নেয় জাভা 4 বাইট। हमको 4 सी शार्प বাইট করে बहुत নেয় पसंद হ্যাঁ आया था जब हम पढ़ তার रहे মানে थे। কত হচ্ছে 4 into 3 মানে 12 বাইট অকুপাই হলো কখন হলো अरे যখন मेन सी আমরা शार्प এই तुम्हारा যখন मॉडर्न আমরা लैंग्वेज এই है ना, নিউ तो उसमें तुम्हारा सारा डेवलपमेंट অপারেটরটা से ইউজ रिलेटेड हर चीज করলাম डाल दिया। নিউ অপারেটরের কাজই হচ্ছে টু অ্যাসাইন দ্য तो उसमें মেমোরি से पहले ফর से দ্যাট तुमको পার্টিকুলার जावा सब का অবজেক্ট सी प्लस प्लस का एंड क्लास लाइब्रेरी सब वेरिएबल डाउनलोड যতগুলো হবে करना होगा, ততগুলোই फिर তোর अच्छा करना মেমোরি সেগমেন্ট তৈরি হবে এন্ড ইট ইজ বাই या फिर ডিফল্ট कोई ইট ইজ इंजन यूज ইনিशिয়ালাইজড करना বাই 0 होगा বিকজ उसको औकात জাভাতে उठाने के लिए। सी ইন্টিজার शार्प में ऑलरेडी सब ভ্যারিয়েবলের है। ডিফল্ট ভ্যালু হয় 0 ফ্লোট হলে 0.0 f ডাবল হলে 0.0 মানে মানে 0.0 এরকম যেহেতু এটা ইন্টিজার ডিফল্ট ভ্যালু 0 দেন কি করেছি দেন আমি এই এখানে যখন এই কনস্ট্রাক্টরটা কল হলো দেন এন্ড দেন এর বডিতে ঢুকলাম देखो तेरे को भी বডিতে टैग ঢুকে किया। দেখছি S1 S2 S3 একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করছি কত 3 4 and 5 अरे So, मंडल हाइट sorry, वो लेके बना रहा তাহলে है। তোর ভ্যালুটা কি হলো এখানে কেটে 3 হলো কেটে 4 হলো আর এখানে কেটে 5 হলো সো ওবির জন্য S1 এর ভ্যালু ইজ ফিক্সড मेरा पहला S2 ভ্যালু क्वेश्चन, ফিক্সড এন্ড S3 ভ্যালুটা ফিক্সড मंडल दो ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट से एरिया निकाल रहा है, ठीक एक है। ऑब्जेक्ट से पेरीमीटर निकाल रहा है। নেক্সট আমি যদি আবার একটা সেম অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে চাই देखो ना भाई, কন্ট্রোল সি एक ऑब्जेक्ट से काम हो जाता। আমি এখানে একটা অবজেক্ট OB1 করলাম and we pass some value 4 8 2 তাহলে কি হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর উইথ 3 আর্গুমেন্ট কনস্ট্রাক্টর উইথ 3 আর্গুমেন্ট 4 8 2 अरे बता दो All उसमें are क्या integer गलती है type. भाई, ও वैसे কি वैसे করবে এই डायरेक्टली आंसर मत बताओ। কনস্ট্রাক্টরের একটা বডি ও ফাইন্ড করবে খুঁজবে কোথায় পেয়েছে হ্যাঁ পেয়ে গেছি তিনটে আর্গুমেন্টেরই আছে তিনটে ইন্টিজার কিন্তু আমি যদি ধর সাপোজ এখানে 2.2 লিখতাম তাহলে এই কনস্ট্রাক্টরের বডি ও খুঁজে পেত না বিকজ ইন্টিজার ইন্টিজার এন্ড ফ্লোট এটা ফ্লোট না এটা অ্যাকচুয়ালি ডাবল হয় ফ্লোট হলে আমাকে পিছনে এখানে f লিখতে হতো কারণ জাভাতে বাই ডিফল্ট ডেসিমাল ভ্যালু ট্রিটেড অ্যাজ ডাবল okay so here I pass 2.2 that means it is a double value but we define here argument as integer type so not match so there will be an error message so an error message हम पहले पेरीमीटर प्रिंट किए, बुझते पारली? साला आ गया 3 but 4 5। if we pass this value बोले भाई फिर क्या हुआ? 3 are integer type then this फिर parameter हम match सोचे कि एक एक करके हमको लगता है सबको Again, इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। memory will फिर हम सोचे allocate चलो एक ब्रैकेट डाल के for देखते हैं, अगर OB1. काम करेगा तो ठीक है भाई, ब्रैकेट Again, डाले काम करेगा। S1 S2 and हमको उतना रिटर्न नहीं S3 करना था बस। S1 এর জন্য কত ছিল 4 8 and suppose 2 हेलो हेलो मंडल, हेलो 482 হ্যাঁ मंडल आ गया। हेलो सेक्सी मंडल, हेलो okay हेलो now we calculate using ob.so ये पहले शुभांकर को ob.so म्यूट कर दो भाई। so ob.so से क्या होगा ob के लिए वैल्यू कॉल हुआ ob के लिए फंक्शन कॉल हुआ not for ob1 ओह, ऐसा that ही means बोलने when we बोलो। call this so function then if we use पहले any तुम्हारा variable formula or if गलत we है। use any जब तुम calculation h then into b by 2 कर रहा है। ob's value सर तुमको ट्रायंगल का 3 pass साइड from दिए, this हाइट नहीं object बताया, तो तुमको हाइट या तो 3 निकाल 4 के and करो 5 या फिर वो जो फॉर्मूला है वो यूज करके करो। so after that so method perimeter और is फिर दूसरा again from here दूसरा गलती है calling कि तुम another दो method ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तुम्हारा काम एक ही ऑब्जेक्ट में हो जाए, nested वो गलती function नहीं है। calling this concept known as मतलब nested तुम्हारा function एक ही calling ऑब्जेक्ट में we काम are हो जाता है। calling one method ऑब्जेक्ट but मतलब this होता method है ना again कि call तुम another method क्लास का चीज तुम एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर perimeter सकते हो। so perimeter है मतलब perimeter কি আছে S1 मतलब कि तुम S2 S3 NSHM का कोई কার क्लास S1 बना S2 हुआ है S3 और उसके अंदर किसका स्टूडेंट्स का S1 डेटा S2 सब है, कुछ है, S2 तो तुम एक S1 S2 NSHM का S3 क्लास का OB1 ऑब्जेक्ट sorry बनाओगे OB ना, तो तुम उस क्लास का हर एक डेटा So, यूज कर सकते हो, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वेरिएबल हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। plus तो तुम जो plus ट्रायंगल ओबी बनाए हो ना, तुम उसी से ओबी डॉट एरिया और ओबी डॉट ठीक है पैरामीटर पेरीमीटर दोनों কত कॉल আসবে कर सकते हो। 12
तो तुमको 2 ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है, again another method area तुम एक ही ऑब्जेक्ट से हर चीज कर सकते हो। সো এরিয়াতে গেল এরিয়াতে ক্যালকুলেশন করে যেটা ভ্যালু আসবে সেটা তোর এখানে রিটার্ন দিবে এগেইন যদি আমি এখানে করি ob1 डॉट शो क्या गलत है? नहीं, और कोई गलती तो नहीं। it will again call show method and हाँ, एक और calculate चीज the ob1 सर बोले तुमको value ob1 कंस्ट्रक्टर value means बना के वो 4 करना 8 है, and 2 वैल्यू इनिशियलाइज करना है। हाँ, तो पाइथागोरस इसमें लगेगा थोड़ा তাহলে ना, 4 8 and 2 নিয়ে আবার কল হলো पाइथागोरस इसमें नहीं পেরিমিটার लगेगा। পেরিমিটারের মধ্যে তোর এখানে 4 8 and 2 हाँ, সামেশন হলো 4 8 and 2 দিয়ে এখানে এরিয়া ক্যালকুলেশন হলো পাইথাগোরাস রাইট সো অ্যাঙ্গেল দিস ইজ দ্য ট্রায়াঙ্গেল। স্ট্র্যাটেজি এই স্ট্র্যাটেজি নিয়ে বেসিক্যালি জাভা প্রোগ্রামটা স্টার্ট হয়েছে এবং এটা থ্রু আউট तो तुमको জাভাতে एक চলবে এরকম कंस्ट्रक्टर কনসেপ্টই চলবে मतलब इंस्टेंस वेरिएबल फॉर्मूला में ही गलती है। हाँ, कंस्ट्रक्टर निकाल फॉर सकते हैं। इनिशियलाइज वैल्यू देखो, और ইনিশিয়ালাইজ দ্য याद অবজেক্ট नहीं है। অবজেক্ট কে ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য এটা ইউজ করা হচ্ছে ওবি কে ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য ইউজ করা হচ্ছে ওবি1 কে ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য এই কনস্ট্রাক্টর ইউজ করা হচ্ছে ঠিক है देन फंक्शन कॉलिंग हाँ, देन वो आवर तुम्हारा उसके लॉजिक एंगल पे फंक्शन डिपेंड और करेगा, आउटपुट फॉर्मूला में ही फंक्शन गलती है ना। बेस और उसके एंगल पे। हाँ हाँ, अरे और और बोल रहे- अरे और सर बोले थे तुमको कंस्ट्रक्टर यूज करके बनाना, तुम कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किए हो। तो वो जो तुम क्यों কিছু वैल्यू বলছিলিস इनिशियलाइज किए हो ना, हाँ, तो उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर ले लो। मतलब वो इंट x इंट y वो বুঝতে करके পারলি ऐसा সমিতা करके देना होगा वैल्यू। नहीं, मतलब कि एक হ্যাঁ স্যার कंस्ट्रक्टर বুঝতে बनाओ পেরেছি ट्रायंगल, ठीक है, उसके हाँ। अंदर फिर जो तुम x इक्वल टू 3 सो b इक्वल कंस्ट्रक्टर टू 4 फीचर्स लिखे की हो ना, वो चीज हाँ। वहां लिख दो। तुम लोग को देखते हैं। বল कंस्ट्रक्टर हमारा फीचर्स की ऐसे पूरा सही है, बस कंस्ट्रक्टर तुम यूज नहीं किए। अब बुलबुल का चोरी किया है। अब क्या, मेरे को पता ही नहीं था भाई। तुम्हारा स्क्रीनशॉट कहाँ है? যা চুপ করে গেলি তো ये किसका तुम्हारा स्क्रीनशॉट कहाँ है शिवदास गौतम को? सबसे नीचे है मेरा। শিবদাস বল কনস্ট্রাক্টর ফিচার্স কি अच्छा ट्रायंगल কনস্ট্রাক্টর কেন ইউজ করব अब बोल रहा है कॉन्स्ट्रक्टर क्यों यूज करेंगे। हाँ वही तो, सो करी आना चाहिए। বল এইমাত্র তো বললাম ये क्या कर रहा है ये आदमी, क्या कर সমিতা रहा है? बता दीजिए सर। अरे वो शिवदास दिए? पूछा, सौम्यता को क्यों बुला रहा है? क्या होता क्या है हमको भी नहीं पता। बता दीजिए। अभी अरे तो हम बोले कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है भाई, कंस्ट्रक्टर हम लोग क्यों बस यूज करेंगे तुम्हारा कंस्ट्रक्टर बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर मुझे पता है कंस्ट्रक्टर एक मेथड initialize है। the object देखो, initialize the object how क्लास initialize the object मेथड और कंस्ट्रक्टर में क्या ऐसे अंतर है? initialize मेथड का करेगा। तुम्हारा अपना नाम होता है, कंस्ट्रक्टर का तुम्हारा क्लास का सेम नाम होता है, हाँ, बस यही एक in डिफरेंस this है। way अब मेथड जैसे काम when करता है वैसे ही when कंस्ट्रक्टर भी we काम use करेगा। this statement बस ना अंतर ये यही है test कि ob जब तुम equals कोई to new ऑब्जेक्ट test बनाते हो तो देखो फिर बेसिकली व्हाट इज तुम ऑब्जेक्ट बना के तुम फर्स्ट ऑफ मेथड को ऑल कॉल कंस्ट्रक्टर करते हो, इज ए मतलब special obj1 method डॉट why बुलबुल, special obj1 डॉट because ओइशी, its तो name तब and जाके बुलबुल और class ओइशी का name मेथड must be कॉल same होगा। must be लेकिन कंस्ट्रक्टर तुम्हारा अगर यहाँ पे टी कैपिटल है लेकिन तो यहाँ पे भी टी कैपिटल होना चाहिए अगर कंस्ट्रक्टर ये स्मॉल तुम्हारा है तो अपने यहाँ आप भी कॉल हो जाता है जब स्मॉल तुम होना ऑब्जेक्ट चाहिए बनाते हो। तुम ऑब्जेक्ट बनाए और ठीक है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर 1 है खुद तो ना खुद यहाँ पे कॉल भी हो, 1 होगा तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दिस इज कंस्ट्रक्टर दिस इज क्लास तो बस यही है। क्लास के बाद हमेशा होता है तो कर्ली कंस्ट्रक्टर ब्रेसेस को और तुम जब क्लास खुद कॉल होता है तो तुम ये उसमें बस कीवर्ड यही होता है काम कर आफ्टर सकते हो कि तुम क्लास वैल्यू कीवर्ड इनिशियलाइज कर लिए। क्लास नेम तुमको हम लोग कोई कहाँ पे वैल्यू डिफाइन करते हैं पास आफ्टर करना है, क्लास तुमको कीवर्ड उस के बाद क्लास ही में जिसका वैल्यू बट का जरूरत है कंस्ट्रक्टर के कंस्ट्रक्टर बाद में क्या भेज होता दो। है ओपन क्लोज ब्रेसेस दैट मींस इट इज कंस्ट्रक्टर ए वैल्यू इनिशियलाइज सिंबल कर ऑफ ए देगा, फिर फंक्शन उस वैल्यू को यूज कर लो क्लास में। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज में तुम ले लो तुम ओपन क्लोज ब्रेसेस देने का मतलब ही है दैट इज ए फंक्शन so constructor is a special function why special because its name and class name must be same it has no return type these are the features basically constructor ये features है these are no these are it has no return type भाई लिटरली हम जावा and it भूल is गए पढ़ना declared होगा। always in public section कभी ओ कभी तुम मंडल लोग कॉम देखते हो सर्वर में कहीं पे अगर तुम कोडिंग देखते हो किताब में या ऑनलाइन में कंस्ट्रक्टर के आगे हम लोग पब्लिक लिखा होता है इसका मतलब क्या है नहीं नहीं पब्लिक नहीं, इज द एक्सेस स्पेसिफायर ये तुम्हारे हम से लोग सहवाल का आवाज आ रहा है। इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे तब भी और भी क्लियर होगा पब्लिक मींस ओपन टू ऑल देखो याद करके देखो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के टाइम में हम बोले थे बिकॉज
when we compile this code, तब क्या होता है, जावा कंपाइलर फर्स्ट मेन कीवर्ड को फाइंड करता है, और कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर इस प्रोग्राम का बाहर में कोई है, मतलब कंपाइलर इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इट इज द आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम. सो फ्रॉम आउटसाइड अगर हम क्लास मतलब किसी भी सेक्शन को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, क्लास के बाहर से अगर किसी भी सेक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, सो वी हैव टू गिव देम एज पब्लिक, हमको वहां पे पब्लिक देना है. ठीक है. सो उसी तरह हमको भी पब्लिक कंस्ट्रक्टर के आगे हम लोग पब्लिक कीवर्ड देना होगा, बिकॉज कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाते हैं. कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं. अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं और इस कोड को ऑफ जो कर भी देते पीरियड है हैं, हम नहीं that means करेंगे. this is not an object, this is an हाँ मेरा भी सेम. this is an अरे reference. वो कोयल मैम का है भाई, ऐसे भी तो रेफरेंस बात का की कोई थी. मेमोरी नहीं होता है. कब मेमोरी क्रिएट होगा, जब हम लोग न्यू ऑपरेटर यूज करेंगे, तब जाके ओबी का S1 S2 और S3 का अलग अलग सेगमेंट मतलब ब्लॉक क्रिएट होगा, मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा. ठीक है. सो आज छोड़े ना, मतलब ऑब्जेक्ट क्या कहां से बना सकते हैं, विद इन क्लास एंड आउटसाइड क्लास आल्सो. हम लोग बाहर से भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नहीं अरे हम बनाएंगे बाद ये में, देख के तो बता concept रहे जब हैं आएगा हम ये लोग देखेंगे. यहाँ पे सो इन क्या नाम है? इस प्रोग्राम के कैलेंडर लिए देख के. यहाँ पे पब्लिक का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसी क्लास के अंदर से. बट वही तो हम भी बोल रहे हैं इफ लौड़ा. वी वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड दिस क्लास, इस क्लास के बाहर से अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाना चाहते, देन वी हैव टू डिक्लेयर दिस फंक्शन एज पब्लिक, नॉट दिस फंक्शन, मतलब नॉट दिस कंस्ट्रक्टर. सब जिस को तुमको एक्सेस करना है, ऐसा क्या? जिस को और तुमको तुम्हारा बाहर से ड्राइव एक्सेस करना है कितनी आउटसाइड दिस क्लास, उसको तुमको पब्लिक में पब्लिक डिक्लेयर करना होगा. सेम एज यहाँ पे भी सेम चीज करना होगा. कॉपी तो क्या हुआ, वो पब्लिक रिस्क वाला इट हटाए, शुड बी डिक्लेयर इन पब्लिक, इट शुड बी डिक्लेयर एज वो पब्लिक. रिस्क पे था जो Okay, ड्राइव था and पूरा. it is used for to initialize the class variable. It is used for initialize the class variable, मतलब ये जो वो साला क्लास वेरिएबल होता है, इसको इंस्टेंस वेरिएबल भी बोला जाता है. इसको इनिशियलाइजेशन करना ही मेन चीज है, आइदर हार्ड कोडेड और थ्रू पैरामीटर. सो हम लोग जावा में बेसिकली थ्रू पैरामीटर ही करेंगे. हम लोग भाई, जावा में आज क्लास तो 4 ही बजे थ्रू ही तक, करेंगे. ऐसे कोड बेसिकली करते हैं हम लोग ज्यादा. लेकिन यहाँ पे 5 बजे एंड तक इट इज लिखा हुआ. कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएट, जब ओ उस क्लास का वो ऑब्जेक्ट तो बनाते हैं हम एआई लोग, है साला, एआई then होता it ही is नहीं है. called automatically. No need to write any सच call सच. forcefully. जैसे हम लोग शो मेथड को कॉल किए थे ob.show, हाँ पेपर भी ऐसे है हम लोग को कॉल करने का जरूरत लेकिन नहीं नहीं है. करा It रहा will है. call automatically when the object is create. सिविक्स का पेपर अच्छा, बस उसका यही तो टीचर ही नहीं कॉन्सेप्ट है, है यही तो एआई का. बात है. बात वो है और भाई, कंस्ट्रक्टर थ्योरी का बेसिकली टू चीज टाइप्स, सब प्रैक्टिकल ने डिफॉल्ट पढ़ा. एंड पैरामीटराइज्ड. मैम से कोई नहीं पूछता. डिफॉल्ट में कोई वैल्यू नहीं जाएगा, पैरामीटर्स में वैल्यू जाएगा. अरे शुभांकर यही ना था जो भाई किक करता था सबको. हाँ अभी नहीं कर रहा है. इसके डर से हम ये क्लास का वो ऑन रखते थे पहले. आशीष ना घूमे ये भौंकेगा तो हाँ हाँ बोलना होगा. বুঝতে পেরেছিস? गौतम सर, हाँ बोलो. यस सर. हाँ सर. हम क्या है बोले, तुम बोलो बोल দেখ बोल. বেসিক্যালি কি হচ্ছে, অবশ্যই तुमको সাবজেক্টের समझ নতুন, में आना ये चाहिए. एकदम न्यू सब्जेक्ट है. एंड बट इसको क्या करना है, मतलब मैम और हम जो भी, मतलब हम लैब में ले रहे हैं, मैम क्लास में ले रहे, थ्योरी ऐसा क्लास, लग रहा है ना तो जो सत्संग भी में बैठे कॉन्सेप्ट हुए है हैं. दोनों आवाज आ मतलब रही. तुमको पढ़ना होगा. क्या क्या आज हम सपोज ये कॉन्स्ट्रक्टर का कुछ के बारे में ऐसा कुछ लग रहा है बताएं, सत्संग इसको में अगर बैठे हैं. तुरंत नहीं आज नहीं तुरंत अनॉय देखो, क्या बोला. किताब से हो या नेट से हो, किसी भी साइट से हो, अगर तुम पढ़ लोगे तो मतलब वो कॉन्सेप्ट क्लियर गांडू हो जाएगा, पढ़ाता कहाँ है हो क्वेश्चन. जाएगा. और साइड बाय साइड ये जो प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, जावा मेरे हिसाब से जावा इज द मोस्ट मतलब इजी लैंग्वेज. सी से भी इजी है, सी लैंग्वेज से भी इजी है. पाइथन से हम हाँ. कंपेयर नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि पाइथन में बहुत सारा पैकेजेस है, जावा में भी है बहुत सारा पैकेज, बट जावा इज मोर सिंपल, क्योंकि इसका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर देखो, हर एक प्रोग्राम में हम लोग यही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं.
हाँ, यहाँ पे फॉर लूप का या उसी तरह जैसे सी में था उसी तरह का यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल क्लास बनाना होगा, वेरिएबल मतलब? देना होगा, इनपुट लेना है, ठीक है, इनपुट लेना है आइदर इनपुट मतलब? मेथड के थ्रू या वो कांस्टेंट वीडियो के में थ्रू। रिकॉर्ड नहीं हो रहा। देन बिल्ड योर लॉजिक ब्लॉक हाँ, करो। तो लॉजिक तुम मतलब अपना ये वीडियो तुमको मत डालना, यहाँ से कैलकुलेशन करना है रिकॉर्डिंग सेव कुछ, कर लेना, या क्या फर्क पड़ता मैक्सिमम है। दिखाना है, मिनिमम दिखाना है, फैक्टोरियल करना है, ठीक है, जो भी है कुछ भी मतलब डाल दो भाई, हमको फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक है ये बेसिकली। और जो लॉजिक देखेगा के ना बाद उसको भी क्या फर्क होगा, नहीं पड़ेगा, आउटपुट क्योंकि फंक्शन। देखने वाले हम ही लोग हो गए। तो प्रोग्राम का कितना सेगमेंट हुआ? वेरिएबल डिक्लेरेशन, ओ इनपुट सेक्शन, लॉजिक सेक्शन तो एंड हम मेरा आउटपुट ये सेक्शन। मेरा वॉइस है ही नहीं, हु द फक इज उसके ही। बाद क्या है, उसके बाद हम मेन लिखेंगे। मेन के अंदर में क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन, देन फंक्शन कॉलिंग। देखो लास्ट क्लास में भी हम जो प्रोग्राम बनाए थे या उसके प्रीवियस क्लास में भी जो प्रोग्राम बनाए थे इसी तरह वो बनाए थे। एरिया वाला कोड पे ना वेरिएबल डिक्लेयर किए 482 थे, हाँ, डालो वहां तो पे कंस्ट्रक्टर नहीं था पैरामीटर डाल लेकिन के वहां पे इनपुट मेथड पैरामीटर था। कंस्ट्रक्टर या सो फिर कुछ भी इनपुट डाल के सेक्शन, 482 डाल लॉजिक डालो सेक्शन, आउटपुट सेक्शन, 482। then main method, then object creation, then function calling. So these are the steps by which we can write a Java code. जो कोड अब बनाया था तुमको तुम उसी से कैसे करो इनपुट ना। लेना है, 482 हार्ड कोडेड लेना है या पैरामीटराइज लेना है, लॉजिक में क्या तुमको लिखना है, फैक्टोरियल बनाना है क्या या है मैक्सिमम कोड निकालना है या एरिया एरिया क्या है? निकालना है, वो एज पर योर क्वेश्चन होगा। सो में क्या करोगे, जो आउटपुट तुम दिखाना चाहते हो, साम का साम, फैक्टोरियल का फैक्टोरियल, प्राइम का प्राइम, ये सब हाँ आउटपुट वही दिखाओगे। लाइन क्या है? और मेन के अंदर क्या करोगे, मेन के अंदर सिंपली उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे और फंक्शन को कॉल करोगे। अगर तुम नेस्टेड फंक्शन नहीं कॉल किए तो 1 by 1 फंक्शन को कॉल करोगे, अदरवाइज थ्रू नेस्टेड फंक्शन के थ्रू तुम जाओगे। सो दिस इज अ सिंपल फंडा, ये सिंपल स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को बेसिकली हम लोग यूज करेंगे Yes. एकदम, मतलब जितना दूर तुम लोग का सिलेबस है सब में इतना ही ऐसे ही यूज होगा। कुछ कुछ डिफरेंशिएट होगा बट वो बहुत कम। क्लास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ये अच्छा अच्छे से क्या बोला, पढ़ो फिर घर से में, बोला रूल? कोई भी किताब से हो। बोलना हार्डवर्ड सील भी पढ़ सकते हो, क्या बोला था उस पे? कंप्लीट वो रेफरेंस थर्ड साइड या वाला बालगुरुस्तम में क्या किताब आता है, वो छोटा किताब है, मतलब उससे छोटा साइज में छोटा है। अच्छा बहुत सारा वेबसाइट है जावा के लिए, बहुत सारा वेबसाइट है, ट्यूटोरियल्स तो वहां से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब का बहुत सारा चैनल है। 2 की जगह 6 डाल के देखते। अगर पेंडिंग रहो तो क्या होगा, एक धीरे 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 वो पेंडिंग का ये बढ़ता जाएगा, लास्ट में क्या होगा, छोड़ो अच्छा तो वो नहीं होगा 12 हमसे। से ज्यादा होना चाहिए ना? हाँ, वो बहुत टॉपिक बढ़ गया है क्लास में, नहीं समझ में आ रहा है सब। एक्चुअली क्या है, जावा में हर एक टॉपिक रिलेटेड टू ईच अदर। अगर तुम क्लास बनाना चाहते हो तो क्लास, अगर तुम बनाना जानते हो तो तुम कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। अगर कंस्ट्रक्टर हो गया तो उसके बाद तुम इनहेरिटेंस भी कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद तुम पॉलीमॉर्फिज्म भी कितना कर डाले? सकते हो। 8 डालने से 14 डालने से 9 लेकिन आ अगर रहा। तुम डायरेक्टली पॉलीमॉर्फिज्म करने जाओगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि उसके पहले 6 तुमको डालने क्लास से बनाना है, 0 आ उसके रहा। बाद कंस्ट्रक्टर लेना है, ठीक है। छोटा छोटा बहुत सारा कीवर्ड्स है, जैसे फाइनल है, स्टैटिक है, ये सब का भी बहुत यूजेस है। मेरा कहाँ पे फाइनल हाँ यूज करेंगे, 11 कहाँ पे पॉइंट स्टैटिक कितना आ यूज रहा करेंगे। 6 डाल। सो अभी तुम लोग का स्टार्टिंग है, अच्छे से पढ़ो। अगर प्रॉब्लम होता है तो सर से, मैम से पूछो, हमसे पूछो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। আর কিছু ডাউটস আছে তোদের কিছু? हाँ फिर भी 9 आ रहा। किसी का 248 कुछ? और मतलब क्लास में थोड़ा अटेंटिव रहो, जिसको किसी को नाम बुला रहे हो तो सोते ही रहते हो। ठीक। सदाफ, यास्मीन, हम अभी तक तुम्हारा वॉइस नहीं मिला, मतलब 3-4 क्लास हो गया लैब का, उससे ज्यादा ही हुआ शायद। 298 डाल के देखो। और भी एक दो। ওয়েসি চৌধুরী, ওইসে को बुला रहा है, ওইসে को बुला रहा है। अरे भाई ও बोला ঘুম ভেঙেছে তোর? জেগেছিলিস? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আমি বললাম ঘুমিয়ে গেছিলিস হয়তো। ঠিক है, চলো ओ नेक्स्ट क्लास भाई में देखते हैं। और ये যেগুলো অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া আছে এগুলো করার চেষ্টা शुभांकर করিস, ট্রাই एक्सपेक्ट नहीं করিস। किया कि वैसी बोलेगा। ক্রিয়েট এ ক্লাস রেক্ট্যাঙ্গেল, দেন রাইট এ প্রোগ্রাম, প্রিন্ট। वैसी को এগুলো बुलाया था। আমিও বলেছিলাম মনে লাস্ট ক্লাসে, ম্যামও বলেছিল এই প্রোগ্রামগুলো করার জন্য। তো আপ টু কনস্ট্রাক্টর এই সবগুলো করা উচিত। তো নেক্সট উইকে আবার তোদের ল্যাব হবে। নেক্সট কবে আছে বলতো? টুইসডে, ঠিক আছে। সো টুইসডেতে আমি দেখবো এর মধ্যে তোরা কতগুলো করেছিস, বা যদি এর মধ্যে কারো কিছু প্রবলেম থাকে তাহলে সেই প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব।
ঠিক আছে, বাট ট্রাই করিস। 4টে প্রোগ্রাম আছে, বেশি নেই, 4টে প্রোগ্রাম, এই 4টে প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করিস। এগুলো সব অ্যাসাইনমেন্টে দেওয়া আছে টিসিএস আয়নে। ओके ठीक है चलो मैम আমরা আছে বল দে টিমস भेजना, আমরা টিমস पे भेजने बोल दे, टीसीएस में मिलेगा नहीं फिर। বলছি অ্যাটেন্ডেন্সটা তাহলে নিয়ে নিও ওদের। অ্যাটেন্ডেন্স আমি ওদের নিয়ে নিয়েছি, তাহলে লিভ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ করে দিন ম্যাম, করে দিন। ওকে ওকে बोलो तुम ही बोलो, बुलबुल बोलो कुछ, बुलबुल जल्दी बोलो, छोड़ो बुलबुल छोड़ो। जल्दी, बुलबुल जल्दी। हेलो हेलो सर। सर। ओ भाई, ओ भाई। अरे भाई आवाज क्या था?